ક્યાં છે બીજા બધા તમારા ભાઈબંધો? નવરાત્રિ. હા, તો હું આખી રાત રમીને ડાયરેક્ટ આવ્યો છું, ઘરે ખાલી નાહવા ગયો હતો. હવે જે કામ તો હોય એ તો કરવું પડે ને નવરાત્રિ સાથે. તમારું કામ શું છે? ભણવાનું. મારું શું છે? નવરાત્રિ તો કરવાની જ છે, પણ આ બી તો કરવાનું છે ને. જો લાસ્ટ ટાઈમની જેમ પહેલે મને સમજાવી દેવા દેજો, તમે લોકો સાંભળો, સમજો ટોપિકને, પછી તમને લખવાનો સમય આપું છું ત્યારે લખજો. શબ્દ નહીં લખવાના, તમને બધી વસ્તુ ખબર પડી જાય એટલું જ લખવાનું. મેં ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન માર્ક કરી હોય, બરાબર છે. શોર્ટ ફોર્મમાં લખવાનું, જેથી તમને રિવિઝનમાં બી થોડું ઇઝી રહે, મજા આવે, બરાબર છે. Supreme Court Handbook on Gender Stereotypes. C. Recently, Chief Justice of India. कौन है? DY चंद्रचूड़. कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है पता है? लिख लो, होमवर्क लिख लो. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़. कौन से नंबर के? विच नंबर? CJI. ठीक है. So basically it was the opinion of the Supreme Court that we should have inclusive language which is equitable. Generally because of stereotyping and prejudice, some words were associated, some attributes to certain people, especially women. So to make it more inclusive and equitable, a book is released. बुक में क्या है, जो वर्ड्स हम अभी यूज़ कर रहे हैं विच आर वेरी मच प्रेजुडाइज्ड और स्टीरियोटाइप, उसकी जगह ऑल्टरनेट वर्ड्स भी सजेस्ट किए हैं. इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द अदर कोर्ट्स दैट दे शुड यूज दिस वर्ड्स rather than the words which we are using since a long time. ठीक है. Handbook on Gender Stereotype, Supreme Court of India, intention of assisting judges and legal practitioners. ठीक है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वुमन की जगह करियर वुमन की जगह, कि करियर वुमन क्या है. ठीक है, करियर तो सबका ही होना चाहिए, मैन हो वुमन हो, और जो भी कुछ भी नया है उनका भी होना चाहिए. ठीक है, तो वुमन यूज़ किया करो भाई. ठीक है. फिर ये हमने ऐसे प्यारे से वर्ड रखे हैं गलत चीज़ को छुपाने के लिए, जैसे क्या है, इव टीजिंग है. ठीक है, ये इव टीजिंग कितना अच्छा लगता है, दिल को बुरा नहीं लगता है. ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, स्ट्रीट सेक्सुअल हरेसमेंट. सही बात है. ठीक है, तो भाई यही बोला करो, स्ट्रीट सेक्सुअल हरेसमेंट. रेप इंस्टेड ऑफ फोर्सिबल रेप. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है. क्यों लिखा है? मोर इक्विटेबल एंड अनबायस्ड लैंग्वेज के लिए. ठीक है. देयर हैव बीन प्रोजेक्ट्स इन अदर कंट्रीज. ठीक है, नॉट ओनली इन हाई कोर्ट्स बट इवन इन द एकेडमिक एरिना, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. ऐसी प्रैक्टिसेस कुछ फॉरवर्ड कंट्रीज या प्रोग्रेसिव कंट्रीज करती है टू मेक थिंग्स मच मोर इंक्लूसिव. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन कोर्ट ऑफ कैनेडा, a collective female lawyer, academics and activities write shadow judgment on equality law. ठीक है. In India, the Indian Feminist Judgment Project also rewrite judgment from a feminist critic. ठीक है, लिखो.
ये किताब पस्ती में जाने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है कि नहीं? जब मेरे जैसे कुछ 4 दोस्त लोग हो गए, वो लोग यूज़ कर ले शायद। શરૂઆતથી કરો તો બરાબર. હા, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકના રિવિઝન્સ છે, શરૂઆતથી નહીં, કારણ કે એટલા ટાઈમ નથી. બટ જે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે, જે ટોપિક્સ જે મારા છૂટી ગયા હોય, મેં ક્લાસમાં નથી કરાયા હજુ સુધી, બરાબર છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કશે કઈ જગ્યાએ મેં વાંચ્યું કે આ ફ્લેટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ ટોપિક્સ બી રાખ્યા છે, બરાબર છે. બાકી મેં ઘણા બધી વસ્તુના ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સના લિસ્ટ જોયા છે. બધી જ વસ્તુ, બધી એઝ ઇન 50-60% તો આપણે ઓલરેડી કરી ચૂકી છે. એના સિવાય તમને આજે અમુક ટોપિક લખાઈશ જે મેં અહીંયા બી નથી કરાયા, ક્લાસમાં નથી કરાયા, અહીંયા નહીં કરાયા, બટ તમે એ વાંચી લેશો તો એ ટોપિક્સ બી તમારા કવર થઈ જશે, બરાબર. અમુક ટોપિક સાયન્સ બેઝ છે, ટોપિક બેઝ છે, એ બધા મારે સમજાવવા પડશે, બરાબર. તો એ બધા હું અહીંયા કરાવી દઈશ, પણ જે ખાલી વાંચવાનાથી તમને આવડી જશે કે અચ્છા આટલું જ છે, તો એવું તમને લખાવી દઈશ. બહુ બધું લખવાની જરૂર નથી છોકરીઓ. હા, ઇન્ડિયન मीन्स IN, इंडियन. जजमेंट मीन्स JUD ऊपर T, जजमेंट. कॉलेज में जाने वाले हो आप लोग, ठीक है. मैं कॉलेज जाके सीखा, मैं आपको एडवांस में सिखा. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है. नाम बताते बताते ही गोवा आ जाता है. डायलॉग सुने जैसे नाम में ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. भारत माने इंडिया. न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. सी, इन इंडिया, all around the world, I think we will be in top 3 or top 5 countries where maximum deaths occur because of road crash, because the quality of the car are of questionable integrity. So government came out with certain criteria, certain rules which needs to be followed, ठीक है. तो उससे क्या बता दिया, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज दैट इट इज़ अ वॉल्यूंटरी प्रोग्राम, ठीक है. आपको करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है नहीं करवाओ, ठीक है कि नहीं. कौन, इमेजिन करो लॉजिकली, अगर ये नहीं पढ़ा होता तब भी ये निकालता कौन होगा. कार की बात चल रही है तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है. इफेक्ट में कब से आएगा, October 1, 2023. आपको इफेक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ October 1 ही लिखना होता है 2023. आपको पता चल जाएगा यार इसके बारे में ही वो होगा, ठीक है. फिर क्या लिखा है, अंडर विच लॉ ये लोग ये लेके आए हैं. ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197, ठीक है. कहाँ से कहाँ 1 to 5 स्टार में रेटिंग देंगे. 5 स्टार मतलब खाने वाली नहीं, ठीक है. आपके घर पे आपने स्टार्स देखे कहीं पे, देखे तो होंगे लेकिन पता नहीं है. अभी आज घर पे जाना, फ्रीज है, AC है, वहाँ पे देखना, वहाँ पे स्टार दिए होंगे 3 स्टार, 4 स्टार, 3.5 स्टार, ठीक है. प्रोसीजर क्या होगा, फ्रंटल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एंड पोल साइड टेस्ट. नोटेबली भारत NCAP इज वॉल्यूंटरी. टेस्टिंग के पैरामीटर्स क्या है, अडल्ट ऑक्यूपेशन, चाइल्ड ऑक्यूपेशन, सेफ्टी असेस, टेक्नोलॉजी. इन सर्टेन केसेस इट इज मैंडेटरी एंड रेकमेंडेड टेस्टिंग, ठीक है. ये हम कहाँ से सीख के आए, कहीं पे भी तो हमने देखा होगा. कहाँ से देखा हमने, ग्लोबल NCAP. ग्लोबल NCAP वर्ल्ड वाइड कुछ बॉडी होगा, उन्होंने क्या बनाया, ग्लोबल NCAP. किसका प्रोजेक्ट है, UK बेस्ड NGO टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, ठीक है.
ये कब से स्टार्ट किया ग्लोबल एनसीईआरटी? 1978 में। ठीक है, हम क्या करेंगे, 50 क्रैश टेस्ट रिजल्ट करेंगे और पब्लिश करेंगे। ठीक है, इंडिया में सबसे पहला 5 स्टार लाने वाला कौन इंसान है? टाटा, 2018 में। ठीक है, लिखो। हाँ, yes, Shikha, you have to come at 11:30 also. છોકરીઓ આયુ રિલિજિયસલી બધા આવશે તો આ પીપીટી મારી ઈચ્છા હશે તો મોકલી આપીશ તમને, ઈચ્છા હશે તો, નોટ શ્યોર, મોકલતો નથી આમ કોઈને. आप लोग बोरिंग लिखते हो, मैं सिर्फ ग्लोबल एनसी करके एरो मार के लिख देता भारत एनसीईपी, और वो भी ग्लोबल और भारत ही लिखता. एनसीईपी की तो मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो भारत वाला कहाँ से आया? ग्लोबल में से. टाटा 5 स्टार, 5 स्टार, बात खत्म. 2018 अचीव्ड बचीव्ड लिखने का क्या जरूरत है?
चलो जाइए आगे। ढोलपुर करौली इंडिया 54 टाइगर रिजर्व। देखो ये ढोलपुर बहुत जोरदार जगह है, आपको नहीं पता होगा। ढोलपुर इज़ अ प्रिंसली स्टेट। ये राजस्थान के को जो ऑस्ट वाइल चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे, नाम सुना है? शी फाइट्स फ्रॉम ढोलपुर, ठीक है। तो ढोलपुर करौली मतलब ढोलपुर कहाँ पे आएगा? राजस्थान, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हम? ठीक है, 1973 सब कुछ पढ़ाया है, NTAC भी पढ़ा दिया है, ठीक है। कहाँ किससे आया NTCAP? WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972। कब बना था? 2006 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। सब यहाँ पे लिखा है और मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा ढोलपुर वाला थोड़ा डिटेल में है इसके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं है? NTCA इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मीन्स बाय द लॉ। कब बना? किसका? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडेड इन 2006। ये भी करवा चुका हूँ पहले। प्रोजेक्ट टाइगर वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इंडिया इज होम 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट 2022 में जो सेंसस हुआ था उसमें कितने हैं? 3167, ठीक है। फिर मैंने बोला था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर वी स्टार्टेड क्रिएटिंग टाइगर रिजर्व। क्यों? इनको घर भी तो रखना पड़ेगा ना इनका, वरना हमारे घर पे आ जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एक से शुरू किया था, अभी कितने हो गए इसको गिन के? 54, ठीक है। रिसेंट वाला कौन सा है? ढोलपुर करौली, ठीक है। टाइगर रिजर्व आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गुजरात गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है अगर करना है तो। कैसे? सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ NTCA। ये जो बॉडी है वो एडवाइस करती है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? नोटिफाई करता है, ठीक है। ऊपर देखो, टाइगर रिजर्व जो होता है, ये क्या कह रहा है? जो टाइगर रिजर्व होता है वो नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ पार्क भी हो सकता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस रीजन को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया तो ये नेशनल पार्क नहीं हो सकता या वाइल्ड लाइफ पार्क नहीं हो सकता, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये राजस्थान में दिस इज द 5th टाइगर सेंचुरी। रणथंभौर सुना होगा आपने, कहाँ पे है? राजस्थान। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान, ठीक है। ढोलपुर वाला तीसरा, बाकी के 2 आप लोग ढूंढोगे, ठीक है। राजस्थान में कितने? 5 है, 3 मैंने बता दिए, 2 आप लोग ढूंढोगे, ठीक है। किधर है? ओ यस, माय बैड, ठीक है। हाँ, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़। रामगढ़ मतलब शोले नहीं देखा होगा आपने, उसमें भी रामगढ़ आता है, ठीक है। जय वीरू जहाँ पे जाते हैं गब्बर सिंह से लड़ने के लिए, ठीक है। बस लिख लो। ये पिक्चर ही नहीं देखते ना, इसलिए मेरे को पढ़ाने में दिक्कत हो जाता है, वरना आधा तो मैं आपको विजुअली याद करवा देता, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट टाइगर और चीता बहुत डिटेल में करवाया है और उसे डिटेल में ही करना है। चीता तो खास करना, हमने उनकी डेथ्स के बारे में पढ़े हैं,
कहाँ से आया, सुप्रीम कोर्ट ने ना बोला, फिर कैसे हाँ हुआ, कहाँ पे कौन सी जगह है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है। चीता को भूल मत जा, और टाइगर को तो बिल्कुल मत भूलना। दिवाली में पिक्चर भी आ रहा है टाइगर 3, ठीक है। चलो रही हो, चलो। हाँ वेरी गुड। देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, लंबी कहानी है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इजराइल कब बना था? 1949। लास्ट लेक्चर में पढ़ाई हुई चीज़ कैसे भूल जाते हो? मेरे को ये पता नहीं चलता, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक। इजराइल कब फॉर्म हुआ था? लास्ट संडे को भी नहीं पढ़ाया, वेडनेसडे को पढ़ाया था ऑनलाइन लेक्चर में। ऐसा दो स्टेट बनाया, ऐसा 4 बार तो बोला हूँ मैं लेक्चर में। बोला था मैंने, एक पाकिस्तान बनाया 1947 में और एक इजराइल बनाया 1948 में। आप लोग यार क्या करो, जल्दी पढ़ो यार। अभी आज 2 दिन गरबा खेल लो, बाद में पढ़ना, ठीक है, लेकिन पढ़ो। इन द सेम वे People's Republic of China, PRC, which is led by the Communist Party under leadership of Mao Zedong. It was formed in 1949. After that, slowly and steadily, they started claiming regions of all their neighbors. ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ मस्ती करते हैं, सबके साथ करते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा जापान भी चाहिए, थोड़ा सा वियतनाम भी चाहिए, थोड़ा सा रशिया भी चाहिए, आजू वाला चाहिए, बाजू वाला चाहिए, ठीक है। विस्तार करते रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड विथ इंडिया just after 1949. In the early 50s, they started claiming this Aksai Chin region. सियाचिन ग्लेशियर याद है? वेडनेसडे को पढ़ाया था, NJ9842, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर मैंने पढ़ाया था। अभी इधर आ जाओ, आज अक्साई चीन। ये कहाँ पे? वेस्टर्न सेक्टर
China claims different parts of India in 3 sectors. One is western, which is Aksai Chin. This part they captured illegally in 1962 war. ठीक है? फिर मिडल सेक्टर आता है। मिडल सेक्टर में 2 चीजें हैं, कौन सी? हिमाचल एंड उत्तराखंड। यहाँ पे भी उनको कुछ लोकेशंस पे दे क्लेम देयर सोवरेनिटी। एंड इन द ईस्टर्न सेक्टर, ये ईस्ट हुआ कि नहीं हुआ, अरुणाचल चाहिए और सिक्किम चाहिए बस, ठीक है, पर ज्यादा नहीं मांग रहे, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को वो लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, ठीक है। और फिर अरुणाचल दे देंगे तो फिर नागालैंड मांग लेंगे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ साउथ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो थोड़ा चलता रहता है इनका, ठीक है। क्या चाहिए उनको अरुणाचल प्रदेश में? ये पूरा का पूरा रीजन तवांग, ठीक है। 1914 ये जो भी किस्सा है, या गाजा, पैलेस्टाइन, ये जो भी देख रहे हो, ये सब मेरे हिसाब से दुनिया के जो सबसे स्मार्ट लोग हैं, ब्रिटिशर्स, ये सब कचरा फैला के गए हैं, जो कि आप हम साफ नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। जब तक वो चाहेंगे वो रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज अ आउटकम ऑफ अ ट्रीटी इन 1914 शिमला में मिले थे, गर्मी चल रही थी, तो शिमला जैसी अच्छी जगह पे थोड़ा ठंडा ठंडा कूल, ठीक है। बैठा कौन था वहां पे? ब्रिटिश इंडिया, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव एंड तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव। कौन बैठा? 3 जन बैठे। इस मीटिंग के आउटकम में एक लाइन बनी जिसका नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है। बट दिस लाइन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय चाइनीज। वो बीच मीटिंग छोड़ के चले गए, लेकिन ब्रिटिशरों ने किसके साथ साइन कर दिया? तिब्बत के साथ, ठीक है। कम फॉरवर्ड अगेन ड्यूरिंग द 1950s, ये 59 में ये लोगों ने तपली मार के सबको वहां से भगा दिया। किसने? चाइना वाले ने, कि ठीक है, ये तो अब तो मैं यहाँ का जयकान छिकरे हूँ, ठीक है, ठीक है। दे एक्चुअली ऑक्यूपाइड तिब्बत, ओके। और फिर तब से उन्होंने ये रीजन भी मांगना शुरू कर दिया है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? ठीक है, ये हुआ, तिब्बत ऑक्यूपाई किया, बाद में दे डिक्लेयर्ड वॉर विद इंडिया 1962, अक्साई चीन ले लिया, और उसके बाद दे कंटिन्यूसली डू एंक्रोचमेंट्स मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, बंकर चला के बना के चले जाते हैं, हर जगह पर लिख देंगे दिस इज अ चाइनीज टेरिटरी। दे ऑलवेज कम आउट विथ मैप्स, जैसे इंडियन गवर्नमेंट खुद के मैप्स निकाल दिए, वो लोग जो मैप्स निकालते हैं उसमें वो लोग थोड़ा सिक्किम गायब कर देते हैं कि ये हमारा है, अरुणाचल भी गायब पूरा कर देते हैं, अरुणाचल तो पूरा ही ले लेते हैं, एंड दे इवन नेम दिस प्लेसेस इन द चाइनीज लैंग्वेजेस, समझ रहे हो। एंड वी ऑलवेज हैव अ डिप्लोमेटिक एस्कालेशन। डिप्लोमेटिक मतलब फिर ये बड़े बड़े लोग थोड़ी फोन पे बात करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, कि भाई ऐसा मत करो वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ गए। चाइनीज प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट। मैंने क्लास में चाइना स्टेपल वीज़ा पढ़ाए थे, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ऑल ऑफ दिस आर अ पार्ट ऑफ चाइनीज इश्यू, ठीक है। पता चल गया मैकमोहन लाइन क्या है, जॉनसन लाइन भी है कि याद रखना, ठीक है। इनके साथ एक और लाइन भी है, वो जो लाइन बनाते रहते थे, ठीक है, जॉनसन लाइन, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। कुछ डाउट? ठीक है, देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। प्राइम मिनिस्टर वॉज नेहरू, ही वॉज अ आइडियलिस्टिक पर्सन। आइडियलिस्टिक मतलब हर एक इंसान में अच्छा सोचने वाला। मैं तो उसे बुरा चीज़ नहीं मानता हूँ, ठीक है, चलो जो भी है, खैर। तो वी हैड ऑलवेज थॉट दैट we both suffered at the hands of imperialistic powers, Chinese and India. So Nehru had a vision that now we should work together for betterment of both the people. हमें क्या झगड़ने की ज़रूरत है? You know, we are oppressed by the same persons. We should work together. But then Chinese had their own agenda. लेकिन फिर इसमें 1954 में पंचशील ट्रीटी हमने साइन की थी, ये पता होना चाहिए। पंचशील ट्रीटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसमें हमने 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि भाई म्यूचुअली रिस्पेक्ट रखो,
ठीक है, दोनों का सोवरेनिटी रिस्पेक्ट करो। सोवरेनिटी मतलब ये इलाका तेरा, ये वाला मेरा, ठीक है। नॉन इंटरफियरेंस, तू मेरे मामले में मत बोल, मैं तेरे मामले में नहीं बोलूँगा, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट्स, ये सब चार चीज़ें बात की थी, ठीक है। पंचायती याद रखनी ज़रूरी है, 1954। फिर ये बॉर्डर का 1962 में हुआ। फिर 1993 में अगेन वी डिसाइडेड दैट ये थोड़ा कुछ बातें अच्छी करनी चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ अग्रीमेंट साइंस हुए। सिर्फ ये लिखना है आपको आगे की स्लाइड्स में, ये चीज़ कब हुई, ये चीज़ कब हुई, ठीक है। बाकी स्टोरी आपको ये याद रहेगी, ठीक है, सिर्फ डेटा लिखना। चाइना ने क्या रिलीज किया है, 2023 एडिशन ऑफ द स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना, चाइना नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिकली वीक। उन्होंने इसमें मैप्स निकाले, अरुणाचल ले लिया, अक्साई चिन ले लिया, बात हो गई। इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने 9 डैश लाइन पढ़ाई थी साउथ चाइना सी में, नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, आप लोग क्या दिवाली वैकेशन में रोज़ 5-5, 6-6 घंटे मेरा लेक्चर देखो, ठीक है। 9 डैश लाइन मैंने पढ़ाया था साउथ चाइना सी में। मैंने बोला था कि वो लोग कहते हैं कि पूरा चाइना का सी किसका बिलोंग करता है, साउथ चाइना सी हमारा। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव इश्यू विथ ऑल द नेबर्स। वियतनाम के साथ झगड़ रहे, इंडोनेशिया के साथ झगड़ रहे, फिलीपाइंस के साथ झगड़ रहे, मलेशिया के साथ झगड़ रहे, सिंगापुर के साथ झगड़ रहे, ठीक है। इमेजिन 5 कंट्री के साथ जस्ट फॉर अ सी, वो तो उनके रीजंस हैं, लेकिन 9 डैश लाइन भी है साउथ चाइना सी में, लिखा है कि नहीं लिखा है, वो भी क्लेम कर रहे हैं। 9 तो छोड़ो, 10 भी क्लेम कर रहे हैं, 10 डैश लाइन चाहिए उनको। 10 डैश लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे वांट टू क्लेम ताइवान आइलैंड। पता है ताइवान के साथ, वो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। द मेन एरिया ऑफ डिस्प्यूट आर अक्साई चिन लोकेटेड इन द वेस्टर्न सेक्टर, हो गया। अरुणाचल ईस्टर्न सेक्टर हो गया। अभी ये याद रखना, अक्साई चिन क्यों इंपॉर्टेंट है। अक्साई चिन से उनका द मोस्ट फेमस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, CPEC, वो पूरा का पूरा हाईवे है, काराकोरम हाईवे भी कहते हैं उसे। वो कहाँ से गुजरता है, अक्साई चीन से, एंड देन वहाँ से वो डायरेक्टली POK में जाता है, और फिर कहाँ जाता है, पाकिस्तान में। ऊपर वाला आधा हिस्सा इनका है, आधा ये वाला पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, तो वहाँ से वो लोग पूरा एक हाईवे बनाया है। क्या कहते हैं उसको, काराकोरम हाईवे, ठीक है, हो गया। 1962 में जब वॉर हुई तब क्या बना, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, विच वॉज द आउटकम ऑफ शिमला अग्रीमेंट। वो और शिमला है, दूसरी बार शिमला गए, ठीक है। 1972, 71 एक्चुअली, 72 नहीं, 1972 शिमला अग्रीमेंट, ठीक है। वेडनेसडे के लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ाई है मैंने, इंडिया पाकिस्तान की बात है, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर हो गया हमारा। क्यों जरूरी है, गालवान वैली में मस्ती हो गई थी 2020 में, और तवांग इन अरुणाचल प्रदेश में कब थोड़ा हो गया था मस्ती, 2022, ठीक है, लिख लो। मेरे पढ़ाने के बाद अब वापस पढ़ते हो ऐसे फिर लिखोगे तो एटलीस्ट मैं होप कर सकता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीजें गई है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने एक काम करते हैं, बीजिंग शिफ्ट हो जाते हैं सारे इंडियंस, शंघाई बेंगाई चले जाते हैं। अभी उनको इधर आके रहने में मज़ा आया है तो हम वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। पता चल रहा है या स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ मैं आपका।
You should take trust in all these things, guys. आपको क्या लॉयर बनना है ना आप सबको, वही बनना है ना आई गेस. दिस थिंग्स आर यार इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यार. लॉ बेसिकली इज व्हाट, डीलिंग विद द अफेयर्स ऑफ द कंट्री. ये सब तो आना चाहिए ना यार, पैशन होना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए. मैं तो नहीं हूँ तब भी रखता हूँ इतना शौक. बहुत नींद आ रही है मुझे. आज इंडिया का मैच है नहीं. न्यूजीलैंड. हाँ આ વખતે ઇન્ડિયા જ જીતવાનું છે. આપણી ટીમ બહુ ખતરનાક છે આ વખતે. ટીમના પ્લેયરનું આમ કહીએ ને આમ સ્ટેન્ડિંગ જોઈને જ ખબર પડી જાય, કોન્ફિડન્સ જોઈને. हो गया, चले. ये जो मैंने बताया शिमला अग्रीमेंट सिर्फ इतना ही लिखना. 3 जन बैठे थे, चाइनीज, तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया. शिमला अग्रीमेंट को इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, चाइना क्या करता है, रिजेक्ट करता है. पंचिल अग्रीमेंट लिखा है कि नहीं, तरह का रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. 1993 में अग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कि हम LAC पे क्या रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे. फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट CBM इन मिलिट्री फील्ड वो कब साइन हुआ था, 1996 में. और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो हुआ बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट 2013. बस इतना ही लिखना है. आप नाम लिख दोगे उससे ही पता चल जाएगा. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब भाई रिश्ता बनाओ, मजबूत बनाओ मिलिटरीज के बीच में. हम यहाँ पे कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं, ठीक है. ये लोग पाकिस्तान से ज़्यादा अंदर आ जाते हैं और ज़्यादा वायलेशन करते हैं, लेकिन हम कभी यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, ठीक है. लेने के देने पड़ जाए शायद. लोग ये देखते नहीं है. स्कूल में भी बेचारा मेरे जैसा इंसान होता था, वो टपली खाता था, ठीक है, बिकॉज यू आर परसीव्ड एज वीक. और आप हो भी, उसमें गलत क्या है.
ठीक है, ये रही बात है। पाकिस्तान पे तो आप 10 सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर असली स्ट्राइक करना है तो यार जाके कर लो, देख लो। Basically, if you beat a weak person, you are just a bully. B-U-L-L-Y. और अगर आप स्ट्रॉन्ग को करते तो मैं आपको महाबली मानने के लिए तैयार हूँ। टू 2013 में हुआ था बिकॉज ऑफ द डेस्पांग वैली इंसिडेंट। डेस्पांग वैली इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन। वो बहुत अंदर आ गए थे और सब तंबू बांध के बैठ दिया होता था। तब मीडिया ने भी बहुत दिखाया था। अभी एक्चुअली चाइनीज आर ऑक्यूपाइड सो मच टेरिटरी, लेकिन आपको अभी गाजा और पैलेस्टाइन के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। राइट नाउ चाइनीज आर ऑक्यूपाइड ह्यूज चंक ऑफ टेरिटरी, लेकिन न्यूज़ दिखाई नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। 2013 में दिखा सकते थे न्यूज़ वाले, ये अभी नहीं दिखा सकते। चलो, हाँ हाँ, चाइनीज स्टेपल वीज़ा याद रख लेना इसके साथ, ठीक है। अरे यार हाँ, प्लीज़ राइट द क्वेश्चन। मैं पता नहीं मैंने पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट एक्चुअली। हाउ मच किलोमीटर ऑफ बाउंड्री वी शेयर विथ चाइना? प्लीज राइट डाउन द लेंथ ऑफ अवर टेरिटोरियल बाउंड्री विथ चाइना कितना है? समथिंग 3 समथिंग है, 3000। क्या है भाई, मैंने क्या नहीं देखा था। वेर इज इट? 348। अच्छा बराबर ने। चलो LK99 જો ના તમારે બહુ સમજવાની જરૂર છે, હું તમને સમજાવીશ એવી રીતના સમજાવીશ, તમને ખબર પડી જશે. લાસ્ટ ટાઈમ જે રીતના બધા સાયન્સના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા તો મને લાગે છે તમારે ભણવું પડશે થોડું. પહેલે એક વસ્તુ સમજો, સુપર કંડક્ટર કોને કહેવાય? કંડક્ટર એટલે શું? જે ટિકિટ ચેક કરે આપણે એમટીએસમાં બેસીએ એ નહીં, બરાબર? કંડક્ટર એટલે યસ. હવે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થાય, ખાલી મને જો અત્યારે અહીંયા ના જો સાંભળો, મને આરામથી બધું જ આવડી જશે આ જાતે. ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થાય ત્યારે રેઝિસ્ટન્સ તો પ્રોવાઈડ થાય કે નહીં? આપણે ચાલીએ છીએ તો રેઝિસ્ટન્સ આવે છે કે નહીં? બરાબર છે કે નહીં? ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસીસ, રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ પ્રોડ્યુસ, બરાબર છે કે નહીં? હવે એ રેઝિસ્ટન્સ મેનિફેસ્ટ કઈ રીતના થાય? મેનિફેસ્ટ મીન્સ આપણને દેખાય કઈ રીતના? વિથ ધ જનરેશન ઓફ હીટ, છે કે નહીં? ગરમ થાય કે નહીં? વિથ ધ જનરેશન ઓફ લાઇટ મે બી. પેલું કંઈક બહુ ગરમ કરીએ આપણે તો લાલ લાલ થઈ જાય છે કે નહીં? બરાબર છે કે નહીં? વાઇબ્રેશન, સાઉન્ડ્સ, બરાબર છે કે નહીં? બટ ઇમેજિન કરી લો એક એવું મટીરિયલ શોધો તમે જેનું રેઝિસ્ટન્સ શું થઈ જાય? 0. તો એને શું કહેવાય? સુપર કંડક્ટર. Because there is no opposition to the flow of electrons. Electricity conductivity શું છે? Flow of electrons. No resistance. બરાબર છે કે ના હીટ જનરેટ થશે, ના વાઇબ્રેશન્સ or anything else, because there is no resistance.
That is possible even right now. But the problem is that superconductivity is always achieved at very, very low temperatures. -5, -10, -49, -200, -100, you know. उस जगह पे जाके कोई भी मटेरियल, नॉर्मल मटेरियल क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर. तो वो एप्लीकेशन वाइज यूज़ करना क्या हो जाता है? चैलेंजिंग हो जाता है. अभी मेरे को यहाँ पे सुपर कंडक्टर चाहिए तो मैं -100 कहाँ से लेके आऊँ? बट इमेजिन इफ यू फाइंड अ मटेरियल विच विल शो दिस प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर, तो अपने को मजा आ जाएगा. ठीक है. तो साइंटिस्ट लोगों ने अभी ढूंढा है ऐसा मटेरियल जिसका नाम क्या है? LK99. किसने ढूंढा? साउथ कोरिया के एक ग्रुप ने ढूंढा है. ठीक है. फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड मटेरियल कॉल्ड एपेटाइट, ए वाला. ठीक है. एपेटाइट है क्या? दे आर मिनरल्स विथ फॉस्फेट स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड मतलब एक स्ट्रक्चर जैसा होता है. स्कैफोल्ड ये आपने कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो बाहर एक लकड़े का स्ट्रक्चर बनाया होता है, पता है? बाहर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्ड कहते हैं. ठीक है. हाँ. इन अ टेट्रा मीन्स 3 हर्डल पिरामिड मोटिव से गोखना है, गोखना ये इतना. ठीक है. लेड एपेटाइट एंड सब्सटीट्यूटेड सम ऑफ लीड एटम्स. लीड का जो एपेटाइट है उसके जो लीड को एटम्स है उसको सब्सट्रैक्ट किया किसके? विद कॉपर, रिजल्टिंग इन कॉपर सब्सटीट्यूटेड लीड एपेटाइट विथ LK99. तो LK99 है क्या? इट इज अ एपेटाइट. किसका एपेटाइट? कॉपर रिप्लेस्ड लीड एपेटाइट. लीड को हमने थोड़ा कुछ रिप्लेस किया ना कॉपर के साथ. ठीक है. और ये मटेरियल जो है वो क्या दिखा रहा है? सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हो लेकिन मैं बता देता हूँ. कोई भी मटेरियल में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब वो मैग्नेट की तरह काम करता है. उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है जब इलेक्ट्रॉन पास होता है. उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सुपर कंडक्टर जब काम करता है मटेरियल, तब वो जो मटेरियल की जो ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या हो जाती है? ज़ीरो. जो इंटरनल मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? ज़ीरो. ठीक है. ये एग्जाम्पल है. ठीक है. हाँ. एविडेंस ऑफ द ग्रुप रिपोर्टेड दैट 10% कॉपर सब्सटीट्यूशन. लीड का आप कितना पार्ट हमने सब्सटीट्यूट किया है? 10. एग्जिबिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर. ठीक है. हो गया, हो गया. हाँ. ये लेके कौन आया कॉन्सेप्ट सुपर कंडक्टिविटी का? 1911 केमरलिंग 1 डिस्कवर्ड दैट मर्क्यूरी कंप्लीटली डिसअपियर्ड एट टेम्परेचर फ्यू डिग्रीज एब्सोल्यूट जीरो. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लेना किसने डिस्कवर किया? 1911 केमलाइट वंस. ठीक है. शुरू करो. इसके बाद एक और है सुपर कंडक्टर के ऊपर ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई थिंक ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिएशन होगा अगर इसको आप कमर्शियली बना पाओगे. इट विल सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल द इलेक्ट्रिक appliances will go through a revolution अगर ये होता है तो एक्चुअली में. पता चला मैंने ये समझाया? वो सेंस लगा? हाँ तो ठीक है. ऐसे ही मेरे को क्या बोलूँ, रख लो. पता चलना चाहिए. इंफॉर्मेशन रख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ लो.
ભાઈ ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ જાગો છો ને બધા, ઊંઘી નથી ગયા ને કોઈ? મને તો એમ થાય ક્લાસમાં આટલી વાતો કરે છે, ઓનલાઈન બધા શું ભણતા હશે? Very good, guys. Very good. आई एम वेटिंग कि कब कोई महाराज बोलेगा ये कि ये सब हमारी एक 200-2000 साल पुरानी किताब में लिखा है, ये भी इंडिया में बना है। ठीक है, देखिए ऐसा मैंने बहुत पढ़ा है। आई रेड वन पोस्ट एज इन लेजिटिमेट क्लेम्स आर मेड दैट यू नो द प्लेन फ्लाइंग प्लेन, कि वो तो हमने पुराणों के काल में ही बना लिया था। फिर मैंने मेरे दोस्त के पूछा कैसे पता चला, तो रावण का जो पुष्पक है पार्थ, वो क्या है? प्लेन। मैंने बोला बस तो फिर हमने ही बना। ओह गॉड, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कहीं पे भी लिखा होगा इसके बारे में, बस वो बुक कहीं खोदे और मिल जाए तो वो भी हम बोल देंगे ये भी किसने बनाया, हमने ही बनाया। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो कोई और बनाए, सब कुछ हमारे वहाँ पे लिखा है, वो भी आज नहीं 2-3 हज़ार साल पहले। ठीक है, चलो हो गया। ये सेम है टॉपिक, डिमॉन पार्टिकल, डिमॉन नहीं डेमन है। ठीक है, डेमन पार्टिकल। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, इलिनॉय है सिटी शिकागो में, नहीं मैं गलत बोला, इलिनॉय के अंदर सिटी है शिकागो, इलिनॉय इज अ स्टेट, शिकागो इज अ सिटी। ठीक है, यूनिक पार्टिकल नोन एज डेमन पार्टिकल्स विद इन अ मेटल कॉल्ड स्ट्रोंशियम रूथनेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रोंशियम भाई? सेम रीजन, सुपर कंडक्टर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर। तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिखो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, मेटल कौन सा है? स्ट्रोंशियम रूथनेट। क्यों इंपॉर्टेंट है? कंटिन्यूएशन में लिख देना। ठीक है, डेमन पार्टिकल नाम किसको देते हैं? टाइप ऑफ अ कॉसी पार्टिकल, पार्टिकल नहीं है, कॉसी पार्टिकल विच इज अ टाइप ऑफ अ पार्टिकल विच इज नॉट अ रियल पार्टिकल, मैंने बोला कि नहीं, बट रेदर अ कलेक्टिव वाइब्रेशंस। एक आई वुड से इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, जब वाइब्रेशंस होते हैं, मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड, सॉलिड के अंदर जब बहुत वाइब्रेशंस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉसी पार्टिकल्स। ठीक है, कॉसी पार्टिकल्स आर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड। खा कहीं मानता नहीं, सॉलिड बराबर, सच एज मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स। ये किसने प्रिडिक्ट किया था डिमॉन पार्टिकल? थियोरिटिकल फिजिक्स डेविड पाइन्स इन 1956। बाकी सारी चीज सेम है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। मैंने ये पढ़ाया था आपका, व्हेन अ सुपर कंडक्टर एक्ट्स एट सुपर कंडक्टिविटी, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? माइजनर इफेक्ट। बस इतना लिखना है, ये भी हमने पढ़ लिया। આખી રાત ગરબા ઓરવ્યો છું, 6 વાગે ઘરે પહોંચ્યો છું, બેસ્યો આરામ, ટીવી જોયું, નાહ્યું ધોયું, થોડું ખાધું, વધારે ખાધું તો 100% એને ઊંઘી ગયો હતો, એટલે મેં થોડુંક જ ખાધું। અને તમે બધા બહારથી ખાધેલા છે। કપડાં બી એક પહેર્યા છે ગઈકાલે, સેમ, એ બી નથી બદલ્યા। આજે બી હવે ઘરે જઈને કશું જ ઊંઘવા નથી મળવાનું, ડાયરેક્ટ બહાર જવાનું છે।
પછી રાતના પાછું ગરબા પાટું આગે એટલે સુવા મળશે કાલ સવારે. આખી રાત ભણવું? હા આપણે તો આખી રાત. હવે શું મારી ઉંમર થઈ ગઈ એટલે બધા દિવસ છેક સુધી રમી નથી શકતો. 12 વાગે એટલે પેક કરી પણ અત્યારે તો હવે બધી રજા જ રજા છે એટલે પછી ખેંચી લેવાનું. બટ આ તો વાત છે હવે તમારે આ બધું ઊંઘવાનું છોડી દેવું જોઈએ બીજા 5, 6, 10 વર્ષ માટે. કોલેજમાં તો 6 વાગે ઊંઘવાનું, 8 વાગે ઉઠી જવાનું, 9 વાગે ઉઠી જવાનું, એવું બધું આદત પાડવું નથી. હું એક્સાઇટેડ છું કે હું પાછો ક્યારે કોલેજમાં જઈશ. નેક્સ્ટ યર આઈ વિલ બી અગેન સ્ટાર્ટિંગ માય પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન યુ નો. તો એ એક્સાઇટમેન્ટ હોવું જોઈએ. મને તો બહુ જ છે. ચલો તમારે તો હવે સ્કૂલ બુલ જવાનું કે બંધ? બંધ. mRNA वैक्सीन भी पढ़नी पड़ेगी आज. आप सबने लिए कि नहीं लिए? वैक्सीन तो लिया है कि नहीं लिया है? नोबेल प्राइज मिला कि नहीं फिजियोलॉजी में फॉर द क्रिएशन ऑफ mRNA वैक्सीन? पढ़ो पढ़ो गाइस पढ़ो. मैं तो ये लॉजिक से बोल रहा हूँ द बेटर कॉलेज यू गो द मोर फन यू कैन हैव. फन एज इन पढ़ाई वाइज भी और उसके अलावा भी. देयर इज सिंपल लॉजिक. जितने लोग स्टूडियस होते हैं वहाँ पे पार्टीज ज़्यादा होती है. लाइक द फन इज इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन दैट गोज इन. चलो अकीरा. पहले ये बताओ अकीरा क्या है. अगर आप सही आंसर दे दोगे तो मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा. अकीरा आपने इसके पहले कहाँ सुना है? चलो हिंट देता हूँ. विराट कोहली. चलो हिंट देता हूँ. उसकी वाइफ अनुष्का शर्मा. हाँ तो यार देखो यार है कि नहीं. लाइव थोड़ा लाइव लगता है. पिक्चर नहीं देखते ना आप लोग. जब तक है जा. ठीक है. उसमें अनुष्का शर्मा का नाम क्या है? अकीरा. ठीक है. अकीरा. लेकिन यहाँ पे क्या है? रैंसम है. रैंसम माने मेरे को उठा लो आप और मेरे पापा को फ़ोन करके बोलो 500 रुपया दे जाओ आपके बेटे के लिए. देंगे नहीं वो. ठीक है. उतना भी नहीं देंगे. वो 500 रुपया क्या हो गया? रैंसम. फिरौती. ठीक है. दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर गाइस. आप सो के उठ जाओ इसके लिए ऐसे जोक्स मारने पड़ते हैं. ठीक है. हाँ. तो रिसेंटली इंडिया सुप्रीम एजेंसी विच वर्क्स इन दिस फील्ड of cyber security threat analysis, respond and how we can do better in cyber attacks. उसका नाम क्या है? CERT-In.
13 मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इंडिया इन मतलब इंडिया। देखो ये लोग भी कितने होशियार है, इंडिया पूरा नहीं लिखते, IN लिखते, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वार्निंग इश्यू किया फॉर अकीरा, ठीक है, कि ये क्या करती है, आपके सिस्टम में घुस के आपके पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर देती है। मतलब आप अपना खुद का ही डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर देती है, और फिर उस ताले की चाबी चाहिए आपको, तो क्या देना पड़ता है, पैसा। मतलब क्या हो गया, रैंसमवेयर। और बिटकॉइन में मांगते हैं पैसा, ठीक है। Ransomware is a type of a malware which hijacks computer data and demands payment, ठीक है। जिसके पीछे भी डॉट अकीरा लगेगा वो गया, समझ रहे हो। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन तो समझते हो ना, फाइल का एक्सटेंशन, डॉट PDF, डॉट PPT, डॉट अकीरा, ठीक है, एक्सटेंशन है उसका। कैसे होता है, फिशिंग होता है, ठीक है। आप जीत गए 10 लाख रुपया, इसी के ऊपर क्लिक कीजिए और अपनी पूंजी को जमा करवाइए, ठीक है। आपने क्लिक किया और आप जमा हो जाओगे, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होते होते रह गया। आई वॉज हैपन, ये क्या है, काम के चक्कर में आई वॉज इन माई ऑफिस, आई वॉज वर्किंग विद सम इम्पॉर्टेंट जॉब। Some guy called me from Torrent that sir your bill has not been due. I was like भाई दे दिया यार, मतलब कि नहीं सर नहीं आया। So I said okay, so tell me just what I need to do. You know you are working, you are not thinking यार, ऑफिस में बैठा हूँ वो भी 4 बजे दोपहर के, you know. So बोले कि you know please download this application. So I did. So he was like now you just need to mirror your screen. मैं बोलूँ यार तू मिरर क्या करवाता है यार। देन आई वॉज थिंकिंग वाइल आई वॉज वर्किंग, क्या इतना टेक्निकल चीज़ तो कोई बुड्ढे को भी नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को कुछ लगा कि कुछ लोचा है इधर, ठीक है। सो देन आई टोल्ड हिम कि देख भाई ज़िंदगी में कुछ काम धंधा किया कर, ठीक है। और मुझे मेरा करने दे। एक्चुअली दैट हैपेंड, अगर मैं करा होता सो इट वुड हैव एक्चुअली, मतलब मैं घर के बाहर चाहता, वो बात अलग है। फिर मुझे फिशिंग करने पड़ते हैं पैसे के लिए। दैट वॉज इट, ठीक है। तो ईमेल मैलिशियस अटैचमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, सॉन्ग डाउनलोड कर दो, वो क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। दिस दैट लिंक्स इन ईमेल्स, ठीक है। नेवर डू एनीथिंग, आपका पैसा चला जाएगा, हाँ ले ले, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप करोगे, बिकॉज नो एजेंसी विल डू ऑल दिस थिंग्स ऑन कॉल और ऑन ईमेल, समझ रहे हो। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो आप, अपने चीज़ को बेहतर कैसे बना सकते हो, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिफिकेशन करो, रिपोर्टिंग करो एंड कन्फर्मेंस करो। कन्फर्मेंस मतलब जो तो अथॉरिटी है उसके साथ कंफर्म करो, ठीक है। एनफोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज, पता है आपको सभी पासवर्ड में ये लोग कहते हैं एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। वो क्यों है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब आप ईमेल भी लॉग इन करते हो तो मोबाइल में कोड आता है, फिर आप डालोगे तब जाके होता है, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिखो। मुझे आँख के अंदर दुख रहा है, अंदर दुख रहा है।
न्यूजीलैंड की टीम लास्ट टाइम आई थी ना फाइनल, इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में, है ना? दैट मीन्स ये लोग अभी सीजन प्लेयर हशे एम ने. चलो થઈ ગયું. चलो मैं पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछता कि जो सर्टिन है ऑर्गेनाइजेशन वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती होगी तो आप क्या बोलोगे? यस, माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, वेरी गुड, सीधी बात, नो बकवास. चलो हो गया, चले आगे चलते हैं. देखो, CERT-3 इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन माइटी, सिर्फ माइटी लिखना. एक इज अ नोडल एजेंसी विच डील विद साइबर सिक्योरिटी, ये भी हमने पढ़ लिया. इश्यू अलर्ट, जैसे अभी क्या इश्यू किया कि नहीं अलर्ट के दे अकीरा आने वाली है, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है. एंड CERT-3 प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज, ये भी मैंने बता दिया. इश्यू करो, अटैक होता है तो रिस्पॉन्ड करो, और उसके बाद में क्या करो, रिस्पॉन्स दो उसको. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्या बात है, एविएशन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, चलो ये बता दो. ये ऐसा कैसे है, मैं रोज पढ़ के नहीं आता हूँ, मेरे को भी पता है, ये आना चाहिए. क्या है न्यूजीलैंड का कैपिटल? आज तो इंडिया न्यूजीलैंड मैच भी है यार, आप लोग हरवाओगे आज यार. यस मोनिष्का करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, वेलिंगटन. ठीक है, क्या है यार. ठीक है, देखो एविएशन में भी किया है और एग्रीकल्चर में भी किया है. एविएशन में क्या किया है, फ्री फ्लोइंग ऑफ ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड. रेड टेपिज्म कम करना, कि अगर फ्लाइट्स उड़ानी है मेरे को इतनी ज़्यादा तो ये परमिशन लो, वो परमिशन लो. ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड के लिए ऐसे रूल्स कम करेगा, फैसिलिटेट करेगा. बेसिकली न्यूजीलैंड वाले किसके लिए करेंगे, हमारे लिए करेंगे. ठीक है, और एग्रीकल्चर में क्या हुआ कोलैबोरेशन, GRA में, ग्लोबल रिसर्च अलायंस, boost agriculture collaboration and invited India to join GRA. इंडिया को इनवाइट किया है, किसने किया होगा, न्यूजीलैंड वालों ने. तो ये GRA किसका होगा, न्यूजीलैंड का. देखो यहाँ पे GRA इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, GRA करता क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम करना है. वाई, ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज. आपको पता नहीं होगा, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन पता है कहाँ से होता है, एग्रीकल्चर से. स्पेशली जब आप पैडी फार्मिंग करते हो, राइस. ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा पता है कहाँ पे होता है, पशुपालन, लाइव स्टॉक, भेड़ बकरियां. ये जब एक्सक्रीटा करते हैं, इट इज हाईली फुल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो कौन से डिपार्टमेंट में कोलैबोरेट करता है GRA, पैडी राइस, क्रॉपलैंड्स एंड लाइव स्टॉक. कि इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस निकलता है उसे कैसे हम रिड्यूस कर सके. ये किसने शुरू किया था, 2009 में न्यूजीलैंड ने. और अभी कितने कंट्रीज है, 67 मेंबर्स. इंडिया अभी मेंबर नहीं है, लेकिन हमें क्या बोला है, भाई तू आ, तू भी मेंबर बन इसका. समझे, पक्का, वेरी गुड. दूसरा कौन सा साइन किया है, MOU, एयर सर्विस अग्रीमेंट 2016. ठीक है, एविएशन पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड. India and New Zealand enjoy the privilege of exercising third and fourth freedom traffic rights. टोटल 6 से 8 वेरियस टाइप ऑफ फ्रीडम्स है इन एविएशन सेक्टर. ठीक है, उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड कौन से सेक्टर पे है अभी, 3 and 4th. ठीक है, न्यूजीलैंड एयरलाइंस कैन ऑपरेट फ्रॉम 6 डेस्टिनेशन इन इंडिया, while Indian airlines can serve in Auckland, Wellington, Christchurch and 3 additional point of New Zealand. मैंने यही बोला ना, तू मुझे जितना प्यार करेगा मैं तुझे उतना ही प्यार करूँगा. ठीक है,
हो गया। हाँ, बोथ एयरलाइंस फ्रीली ऑपरेट अनलिमिटेड कार्गो यूजिंग एनी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। बोला कि नहीं मैंने? बेसिकली फैसिलिटेट करना है ताकि एविएशन सेक्टर ग्रो करे। ठीक है, लिखो। न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है? लिख देना। सेक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। इमेजिन करो मैंने 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया विच इज ग्रीन हाउस गैस। अगर मैं उसके सामने 5 पेड़ लगा दूं, जो वो 10 में से 5 किलो एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या होता है? सेक्वेस्ट्रेशन। जो ग्रीन हाउस गैस निकलता है उससे आप एब्जॉर्ब कर लो, तो वो एटमॉस्फेयर में तो नहीं गया, तो वो क्या कहते हैं हम? सेक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। वीर बहादुर लड़के।
चलो चले आगे। ठीक है, लग हाँ, चलो ध्यान से सुनना। स्टोरी ऐसी चलती है, अभी हमें यूरोप जाना होता है, तो हम कहाँ से जाते हैं सोचो ज़रा, विजुअली देखो मेरे साथ। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से, मतलब मुंबई, गुजरात, कर्नाटक से शिप निकलता है, इंडियन ओशन क्रॉस करेगा, गल्फ क्रॉस करेगा, रेड सी आएगा, रेड सी क्रॉस करेगा, फिर जाएगा सुएज कैनल, सुएज कैनल क्रॉस करेगा, मेडिटेरियन जाएगा, फिर वहाँ से निकल के ऊपर होके कहाँ जाएंगे हम, यूरोप, है कि नहीं? इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग रूट टू रीच यूरोप। अभी दूसरा मेरे साथ देखो आंखों से, अगर हम ईस्टर्न कोस्ट से निकलते हैं तो हम मलाका स्ट्रेट क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, चाइना, रशिया। लेकिन फिर ऊपर तो आर्कटिक आता है, आर्कटिक तो मोस्ट ऑफ द टाइम 8 महीने फ्रोजन रहता है, तो वहाँ पे बड़े शिप्स तो नेविगेट कर नहीं सकते। लेकिन थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये मैं टॉन्ट मार रहा हूँ, हमने उसको पूरा पिघला दिया है, वो पिघल गया है, हम नहीं पिघलते, वो पिघल गया है, ठीक है। सो फ्रॉम दैट रीजन विच इज कॉल्ड द नॉर्दर्न रूट, नाम ही क्या है क्योंकि नॉर्थ से जाएगा, सो डायरेक्ट ऊपर से सीधा सीधा क्रॉस करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं, यूरोप, विच डिक्रीजेस द टाइम फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन नॉर्दर्न रूट के बारे में सोचो, वहाँ पे तो सब बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं, भाई लोग मतलब सबसे बड़ा भाई रशिया, अब दूसरा बड़ा भाई है कंपटीशन में चाइना, बिकॉज दे डायरेक्टली शेयर बॉर्डर विद द नॉर्दर्न रूट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, मैनेज, जियोपॉलिटिकली भी मैनेज करनी पड़ेगी, है कि नहीं। फिर नॉर्दर्न रूट में कौन सी कंट्रीज आएगी, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, वो आर्कटिक के पास आई, है कि नहीं, पोलैंड, जर्मनी, गॉट इट, समझ गए। पहले नॉर्दर्न रूट का मैप दिखाता हूँ आपको, ये देखो अभी कहाँ पे जाते हैं, मैंने बोला ना, इधर से निकले, इंडियन ओशन क्रॉस किया, ये वाला पार्ट जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो कौन सा है, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से आए, सुएज कैनल क्रॉस किया, सुएज कैनल क्रॉस किया, मेडिटेरियन में घुसे, मेडिटेरियन से बाहर निकले तो फिर आपको अटलांटिक से घूम के जाना पड़ता है यूरोप तक, यही मैंने बताया। अब इधर देखो मलाका स्ट्रेट, ये रहा, ये गए तो फटाक करके, ये कौन सा स्ट्रेट है याद रखना, द स्ट्रेट, STRAIT, विच सेपरेट्स रशिया फ्रॉम यूएसए, अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का, उसको क्या कहते हैं आप, बेरिंग स्ट्रेट। और फिर ये नॉर्दर्न रूट देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे कौन सी कंट्रीज आएगी, NSD, आपको MSD बहुत पसंद होगा, यहाँ पे क्या याद रखना है, NSD, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। इधर भाई कौन है, पूरा बड़ा भाई रशिया, इधर कौन है बड़ा भाई, चाइना, ठीक है। सो दिस कंट्रीज विल प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन दिस नॉर्दर्न सी रूट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अमेरिका भी इक्वल पार्टनर है कि नहीं है, देखो अलास्का, कनाडा, है कि नहीं है इक्वल पार्टनर, ये रहा कनाडा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे। अभी हमें कुछ पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा, मुरमांस्क, पॉपुलरली कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द आर्कटिक रीजन, नाम क्या है, मुरमांस्क, इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द NSR। क्या हो रहा है, इंडिया का कार्गो मूवमेंट यहाँ पे बहुत बढ़ गया है, मतलब अभी से ही हमारा कार्गो मूवमेंट इस रीजन में क्या है, बहुत
बढ़ गया है। 7 months of 2023 इंडिया का शेयर कितना है? 35% of 8 million tons of cargo handled by मुरमांस्क पोर्ट। मुरमांस्क जो पोर्ट है उसमें से 35% किसने हैंडल किया है? इंडिया ने। इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, आप सबको पता होगा कि अभी हमारा टॉप ऑयल सप्लायर कौन है? रशिया। उसी रीजन में है। समझ रहे हो कि नहीं क्यों ऐसा हो रहा है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड ऑयल इस रीजन में है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वहां पे भी गंदगी फैलाएंगे अभी जाकर, ठीक है। 40% ऑफ द करंट ग्लोबल रिजर्व ऑफ ऑयल एंड गैस कहाँ पे है? इन द आर्कटिक रीजन, ठीक है। वी आर ह्यूमंस, वी आर बोर्न टू क्रिएट वेस्ट, ठीक है। द रीजन हैज रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, ठीक है, अदानी को अच्छा रहेगा। जिप्सम एंड डायमंड्स, बाकी सारे मिनरल्स भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है दैट इंडिया इतना दूर है आर्कटिक रीजन से तो हमने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली 2014 के पहले भी हमने इस रीजन में काफी काम किया है, ठीक है। बोलना पड़ता है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमने यहाँ पे हिमाद्री करके एक रिसर्च स्टेशन बनाया है बहुत पहले। हमने यहाँ पे इंडिया आर्क भी बनाया है, इंडिया आर्क विच इज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। समझ रहे हो क्या? 2014 के पहले, ठीक है। इंडिया एंगेजमेंट विद द आर्कटिक डे गोज टू द साइनिंग ऑफ स्वालबार्ड ट्रीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वालबार्ड इज अ रीजन इन आर्कटिक जहां पे हमने पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट क्रॉप, प्लांट्स एंड ग्रेन्स का कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ है कि अगर पृथ्वी का विनाश हो गया तो खाने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना, तो उधर जाके खोल के हम ले लेंगे, ठीक है। इनिशिएटिव्स लाइक हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, हम सालों से जा रहे हैं वहां पे। मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी है, शोकेस इंडियाज कमिटमेंट टू आर्कटिक रीजन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, इंडिया इज अ ऑब्जर्वर स्टेट इन आर्कटिक काउंसिल सिंस 2013। आर्कटिक काउंसिल मैंने बढ़ाया था, 8 मेंबर का ग्रुप है, ठीक है। पुराने लेक्चर देख लेना, 8 मेंबर का ग्रुप है। जितने भी बॉर्डर स्टेट से आर्कटिक के वो सब बैठते हैं उसके ऊपर। अभी हमने देखा यूएसए कनाडा है कि नहीं, एनएसडी है कि नहीं, रशिया, बाकी 2 कौन बाकी रह गए? चाइना नहीं बैठेगा उसके ऊपर। आइसलैंड नहीं, एक और रह गया है, कौन है? ठीक है, 8 मेंबर है, वो मैं श्योर हूँ, आप लोग देख लेना बाद में। नहीं, जर्मनी नहीं बैठेगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, शायद तक फिनलैंड होगा, फिनलैंड शायद, मोस्टली फिनलैंड, ठीक है। हिमाद्री रिसर्च भी है इन द स्वालबर्ड। स्वालबर्ड कहाँ पे है? नॉर्वे में, याद रखना, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके? नॉर्दर्न सी रूट इंपॉर्टेंट है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज इमेजिन चाइना अपना यहाँ पे डोमिनेंस कर ले तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। इट इज़ अ टाइम सेविंग रूट टू रीच द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एंड इंडिया एस्पायर्स टू बी विश्व गुरु, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिर हर एक डिपार्टमेंट में हमें आगे होना चाहिए, स्पेस हो, आर्कटिक हो, एंटार्क्टिका हो, ठीक है। सब कुछ में हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पड़ोसी मुल्क की तरह ऐसी सारी चीज़ों में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लिख लो। कैसे बोल गए यार, ये सब क्या लिखते हैं?
I need to get a life. Come on. पर्सनालिटी नहीं बनाते लोग आजकल नारेबाजी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट। Svalbard Treaty, basically, it was decided that we will make a storage of different type of grains which are essential for preserving their genetic composition. ठीक है, अभी केसर कैरी खानी है मेरे को और इमेजिन करो सब कुछ उठ गया केसर कैरी का, तो कहीं पे तो सीड्स होने चाहिए ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और दूसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट कमर्शियल एक्सेस मिले इस जगह का, बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट प्लेस टू आर्कटिक, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्वे वाला बोले कि इधर से मैं ही मस्ती करूँगा। मैं अगर इंडिया को बनानी है ये ऑब्जर्वेटरी हिमाद्री, तो हमने कहाँ पे बनाई? स्वालबर्ड में बनाई कि नहीं बनाई? सो बेसिकली दिस ट्रीटी वॉज टू मेक श्योर दैट पीपल एंड अदर कंट्रीज कैन हैव एक्सेस to this region. लेकिन ये आइलैंड किसका है? नॉर्वे का, ये बात याद रखना। सोवरिन कौन है? नॉर्वे। और इधर ऐसा हथियार ले जाके मस्ती नहीं कर सकते। इट इज अ डीमिलिटराइज्ड रीजन। चलो भाई बहनों, थैंक यू। इंडिया आर्क भी लिख देना, इंडिया आर्क, इंडिया ARC आर्क, ठीक है? ये भी इधर बनाया हमने। थैंक यू। ये सब लिखना है, इंपॉर्टेंट है, लिखो। देखो नॉर्दर्न रूट में 4 सी इंपॉर्टेंट है। एक बेरिंग स्ट्रेट है कि नहीं, और फिर कारा सी है, लाप्टेव सी है, बेरिंग है एंड ईस्ट साइबेरियन सी है। ये आर्कटिक ओशन के पार्ट्स है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो पूरा लाइन देखा था कि नहीं देखा था? वो सारे इन 4 सी से पास होता है, ठीक है? रनिंग 5006 kilometer, route begins boundary between the Bering Sea and the Kara and ends in the
बैरिंग स्ट्रेट। बैरिंग स्ट्रेट एक साइड था कि नहीं था, और लेफ्ट ईस्ट में कौन सा था, बैरेंट एंड कारा। 50% सेविंग्स हो सकता है डिस्टेंस में, रेदर देन द ट्रेडिशनल रूट टू सुएज और पनामा। देखा कि नहीं हमने, अगर सुएज कैनल में वो शिप फंस गया था, एवरग्रीन शिप, पता है कि नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो नॉर्दर्न रूट हमारे पास है, तो वी विल बी गुड टू गो, ठीक है। और हम एक रूट बनाने वाले हैं, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। ये सेम रूट है। व्लादिवोस्तोक कहाँ पे पता है, दिखा देता हूँ आपको, इधर। तो ये तो हमें रास्ते में ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैंने बोला था कि नहीं, चेन्नई से ईस्टर्न साइड से निकलेंगे व्लादिवोस्टोक, हमें तो रास्ते में आता है ये रूट, ठीक है। ऑफर्स अ शॉर्टर एंड एफिशिएंट ट्रेड रूट, देखा कि नहीं देखा, लिख लो। जियोपॉलिटिक्स है ये सब, तो देखो समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। कंट्रीज विच रूल द सी रूल द वर्ल्ड। बेस्ट एग्जांपल देखना है ब्रिटेन, और उसके बाद का देखना है अमेरिका, मोस्ट पावरफुल नेवीज। ब्रिटेन के पहले कौन था, सबका बाप, स्पेनियर्ड्स, सुपर पावर, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका, और अमेरिका को कोई कुछ नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। गाजा को मारने के लिए अभी कुछ 100 मिलियन मांग रहे हैं, इमेजिन गाजा इतना, उनको हराने के लिए कितना पैसा देने मांगा है, 100 मिलियन। लेवल ही अलग है पॉलिटिक्स का। गाजा और यूक्रेन दोनों के लिए मांगे, ठीक है। ओके गाइस, अभी के लिए इतना, ठीक है। 11:30 मिलते हैं। Recording stopped.